Good evening, student, and hello. How are you? I hope you all are fine. उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और 15 अप्रैल की इस शाम को आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन. Dear friends, dear students, once again I welcome you on the Filler Form app, and I hope many students have joined. Good evening, all of you. Once again, good evening. And formally I welcome you, and I would like to tell you, student, our Filler Farm app is on different social media platform. You can meet us on Instagram, WhatsApp, and you can also meet on WhatsApp also. Okay, so here I am Dinesh Kamli Brahmane. I welcome you in this UGC NET JRF Filler Farm app. Okay, good evening, student. Good evening, everyone. Good evening. My voice, audio, video, everything is clear. Please confirm me. Everything is fine, yes or no? I hope. Okay. So student, without getting delay, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप फिलर फॉर्म ऐप को डाउनलोड करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, इंस्टाग्राम पर जुड़ें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें. आपको नोट्स, ये कोर्सेस है हमारे पहले पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, 6 महीने के लिए और 12 मंथ्स के लिए. सो यू कैन परचेस अवर कोर्स. आपको जानकारी होगी कि समय समय पर हमारा प्लेटफॉर्म जो है डिस्काउंट के साथ में मिनिमम फी में, नॉमिनल फी में आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है. सारे सब्जेक्ट आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के पढ़ाए जा रहे हैं. यू कैन जॉइन अस. ओके स्टूडेंट, once again please confirm me, my voice and everything is clear, yes or no? Please tell me. आवाज आ रही है? एंड यू विल गेट, है ना, यहां से आप लोग जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन विद आंसर और मॉक टेस्ट आपको यहां से मिलेंगे. ठीक है. And if you want to get 10% off, if there are some new student, I hope there will be some new student today. So if you are new, यदि आप नए हैं मेरे इस प्लेटफॉर्म पर, आप न्यू हैं, I welcome you student. And if you want to purchase my course and if you want to get 10% off, अभी जो 25% चल रहा है, तो स्टूडेंट DISENG10 you can use my code and you can get discount also. Okay, so formally once again let me welcome. I hope there will be some new students, so it's my duty to introduce myself. Student, once again let me tell you, let me introduce. Here I am your mentor, your guider of English, Dinesh Kamli Brahmane, UGC NTA NET qualified English. I have already qualified UGC NET. Right now I am pursuing PhD. I have done MA in sociology also. Student, I have been awarded by the Government of India and Government of Madhya Pradesh. The major awards which is given by the President of India, I have received these awards: Indira Gandhi National NSS Award in 2010 and 11, and MP State Level NSS Award in 2010 and 11. Student, I have 15 years of teaching experience, as well as I used to be the government faculty of English. Means I have worked as a government assistant professor ad hoc, है ना. And these are my brief introduction, student. You can look at me as I am trying to teach you, student, and we have been you can say I have been taking your class for last few days. ठीक है. So let me tell you, student, आपको बताना चाहूंगा, हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना शुरू किया है. कुछ स्टूडेंट जो नए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने जो यूनिट 10 है, इंग्लिश लिटरेचर में 10 यूनिट है. There are 10 units in English literature prescribed syllabus of UGC NET. तो उसमें जो पहली 4 यूनिट है स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, इसको हम कंबाइन पढ़ रहे हैं. जैसे हमको पहली यूनिट में हमको है ड्रामा, सेकंड यूनिट में हमारा पोएट्री है, ठीक है, फिर थर्ड यूनिट में हमारा जो है फिक्शन है ना, हमारा जो है थर्ड यूनिट में हमारा फिक्शन है. एक सेकंड. ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर जो है, और फिर फिक्शन और उसके बाद में आपका प्रोज, ये चारों चीजें हम कंबाइंड साथ में पढ़ रहे हैं. चारों यूनिट हम जो है साथ में पढ़ रहे हैं.
यानी हम एज ऑफ चौसर में देखेंगे, जैसे हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ब्रिटिश लिटरेचर में जो जो ड्रामाटिस्ट है वो भी पढ़ेंगे, पोएट्स है उनको पढ़ेंगे हम लोग, फिक्शन है उनको पढ़ेंगे, और प्रोज को एक कंबाइन स्टडी हम लोग करेंगे बहुत शानदार तरीके से स्टूडेंट। और हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश लिटरेचर में एज ऑफ चौसर, अलग अलग एज रही है स्टूडेंट, अलग अलग एज वाइज साहित्य लिखा गया है, लिटरेचर लिखा गया है, क्योंकि हर एज की हर जो सीढ़ी होती है, एज होती है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस सिनारियो होता है। उसी सिनारियो के आधार पे जो कंटेम्पररी राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, ड्रामाटिस्ट होते हैं, वो अपनी बात को लिखते हैं, अपने राइटिंग वर्क्स को लिखते हैं। आपको मैं बार बार कहता हूं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। सो पर्टिकुलर है ना, वी कम टू नो अबाउट द पर्टिकुलर अबाउट द सोसाइटी ऑफ पर्टिकुलर एरा, है ना, उस पर्टिकुलर एरा की सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, उसके कंटेम्पररी जो रिलीजन क्या स्थिति रही उसके बारे में हम जानते हैं। इसीलिए हम लोग जो है अलग अलग एज वाइज पढ़ते हैं। स्टूडेंट हम लोग, हमारा ये लेक्चर 16 हमने कल किया था, ब्रिटिश लिटरेचर वी हैव स्टार्टेड। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप, है ना, फिलर फॉर्म ऐप। स्टूडेंट जब भी आप ज्वाइन करें, यू कैन सी, यू कैन विजिट अवर रिकॉर्डेड क्लासेस। आप हमारे पहले दिन से सारी रिकॉर्डेड क्लास है, पहले दिन से आपको पीडीएफ नोट्स शानदार मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लिटरेचर टू बिकम अ JRF। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, मैंने ये कल पढ़ाया है। मैं हर 5-7 मिनट का रिवीजन क्लास लेता हूं, बिकॉज आई बिलीव इन रिवीजन। बिना रिवीजन के कुछ भी डिवीजन नहीं है। तो हम लोग एज ऑफ चौसर की बात कर रहे हैं, और ये जो एज ऑफ चौसर है 1340 से 1400 तक मानी जाती है। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। रुचि, देन तृप्ति, है ना, सो गुड इवनिंग एवरीवन। और ये व्यू ऑफ सक्सेस, गुड इवनिंग स्टूडेंट। वंस अगेन ये हमने बात करी है, और एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, ये जो है एज ऑफ चौसर जो है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है, ये मीटिंग ग्राउंड है न्यू और ओल्ड, ओल्ड और न्यू का। ठीक है, रेनेसां आप देखेंगे, रिफॉर्मेशन रेनेसां का, न्यू क्लासिकल, इस तरीके से मीटिंग ग्राउंड है एक तरीके से, ये संक्रमण काल है। यहाँ से एक नया दौर देखने को मिलेगा, नई राइटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एज ऑफ चौसर में हमने बात करी थी पॉलिटिकल कंडीशन की, तो 100 ईयर्स वार हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो है ये वार हुआ है, हमने इसकी चर्चा करी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम कल बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और धीरे से जो है सोशल कंडीशन की हम बात करें तो ब्लैक डेथ बड़ी घटना हुई थी, पीजेंट्स रिवॉल्व हुई थी, है ना। ब्लैक डेथ में आपने इतना बहुत ही आप कह सकते हैं कि जिसमें जन हानि हुई थी। ठीक है, तो डेथ रेशो बहुत ज्यादा हुआ था, लगभग आधी से ज्यादा या 1/3 पॉपुलेशन जो है ना, उनकी हो गई थी इस बीमारी से। इसके साथ ही ये जो 100 ईयर्स वार हो रहा था, इसमें टैक्स बहुत ज्यादा पीजेंट्स के ऊपर, किसानों के ऊपर लगाया जा रहा था। फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था थी, तो किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही थी। ठीक है, सामंत उनको परेशान करते थे लगान वसूल करने के लिए, और वो फिर राजा के पास पहुंचाते थे। तो यहाँ पर किसानों ने भी आंदोलन कर दिया था, तो ये सामाजिक घटनाक्रम हुआ है। और फिर हम बात करें ये सब, जबकि हम बात करें ये जो बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं, है ना, अनेकों जन हानि हो रही है, लेकिन जो राजा वहां के थे वो ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो फिर लोग वहां से उनसे नाराज हो गए थे। ठीक है, अब लेबर नहीं मिल रहा है, श्रम नहीं मिल रहा था, श्रमिक जो है, चूंकि जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी, तो लेबर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो लेबर के भाव बढ़ गए थे, लेबर अब जो है मनपसंद मजदूरी लेना शुरू कर चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। उसके बाद में राइज ऑफ मॉडर्न स्पिरिट, द डिके ऑफ फ्यूडलिज्म, जो सामंती व्यवस्था का एक तरीके से डिक्रीज होती है सामंती व्यवस्था, हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में हम किंग रिचर्ड आते हैं, किंग रिचर्ड के बारे में हमने पढ़ा है ना, डेमोक्रेटिक स्पिरिट। अब इसी बीच में क्या होता है कि जनता जागरूक होती है, जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती है, और वो जो है डेमोक्रेटिक स्पिरिट के प्रति आगे बढ़ती है स्टूडेंट। ठीक है, हम यहाँ पर आगे और हमने बात करी है स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ वुमेन,
तो महिलाओं को पहले बहुत सारे अधिकार नहीं थे, खास करके जो निचले तबके की, निचले समाज की महिलाएं थी वो इलिटरेट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं को भी क्या है, पावर में आने का है ना अवसर मिलता गया। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा डॉरी सिस्टम और ये सारी चीजें पढ़ी हैं। रिलीजन कंडीशन की हमने बात करी, तो जो चर्च थे, ऑल द चर्च है ना, करप्शन इन द चर्च, और उसके साथ ही द लोलार्ड मूवमेंट आया था। लोलार्ड मूवमेंट कौन है स्टूडेंट? आई टोल्ड यू यस्टरडे व्हाट इज लोलार्ड मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है करप्शन के एक प्रतीक बन गए थे, लोग बहुत ज्यादा इन पे गुस्सा हो रहे थे। ठीक है, और जो क्लर्जी मैन थे या जो पादरी थे या जो चर्च में काम करने वाले लोग थे, चर्च से जुड़े हुए लोग, वो धार्मिक काम करने की बजाय, धार्मिक मेडिटेशन करने के बजाय अपने है ना शराब, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइन, वेल्थ और वुमेन में व्यस्त हो गए थे। ठीक है, तो जनता इससे बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि जॉन वाइक्लिफ, इसी इनको ही मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, देखिए एक होता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, आगे आएंगे, है ना, यहाँ पर रिफॉर्मेशन है, रिमेंबर मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, है ना, ये जॉन वाइक्लिफ है, और इनके जो समर्थक थे, फॉलोअर्स है, दे आर कॉल्ड है ना लोलेंस, और ये इन्होंने विरोध करना शुरू किया था और एक न्यू क्रिश्चियनिटी, रियल क्रिश्चियनिटी को लेकर आए थे, इसलिए इनको लोलार्ड मूवमेंट कहते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? यस आर नो? गॉट इट? वॉइस इज क्लियर? यस आर नो? वॉइस इज क्लियर? चलिए, Wycliffe's follower known as Lollards, है ना, we have discussed yesterday, and that was called the Lollard movement, ये हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन, ट्रेड और कॉमर्स में बढ़ोतरी हो रही थी, हम कल चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे। ठीक है स्टूडेंट, रिवीजन करना जरूरी है, विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट मेमोराइज द थिंग्स। Now let us discuss the major characteristics of age of Chaucer. I am here talking what are the major characteristics age of Chaucer की, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हमें जानना है, जानना जरूरी है स्टूडेंट। तो उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है लैंग्वेज को लेकर के। आइए जानते क्या है कि द एज सा द एमरजेंस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। एमरजेंस मतलब उत्थान, एक स्तरीय अंग्रेजी के उत्थान को लेकर के इस एज, ये एज उसकी गवाह बनती है। दिस वाज द सिंगल बिगेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द एज। इंग्लिश हैड प्रीवियसली बीन हेवीली कर्व्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन। पिछले मतलब थोड़ा प्रीवियस जाए तो फ्रेंच और लैटिन के द्वारा इंग्लिश को दबा दिया गया था, लेकिन इस एज में जोफ्री चौसर के आने के बाद से क्या है, अंग्रेजी ने अपना उत्थान करना शुरू किया। इस एज में इंग्लिश का है ना द ईस्ट मिडिल डायलेक्ट को यूज करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरीके से यूज होने लगा। एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड में उस समय जो है लोकल लैंग्वेज थी, एक एरिया क्षेत्र विशेष की लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पर जो है इंग्लिश का एक लैंग्वेज के रूप में ओरिजिन होता है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा इसमें आप यहाँ पर देखिए द ईस्ट मतलब इसी में आगे द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बिकेम द एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, है ना, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया जाने लगा इंग्लिश में। ठीक है, द लैंग्वेज सा ग्रेट अचीवमेंट एंड एक्सप्रेशन इन द मास्टरपीस ऑफ चौसर। ये देखिए खास करके चौसर की जो वर्क्स लिखे थे, उनके मास्टरपीसेस थे, उसमें इस द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड, ईस्ट में जो बोली जाने वाली जो डायलेक्ट थी, एक बोली थी बाहर छोटी सी क्षेत्र में बोले जाने वाली, वो इंग्लिश को उन्होंने यूज करना शुरू किया। फ्रेंच लैटिन saw a waning influence on the language of the day. Chaucer's use of language to describe the man and his place is embellished with beauty, simplicity and humor. स्टूडेंट यहाँ पर क्या मैंने जैसा कि बताया आपको, फ्रेंच और लैटिन ने क्या है एक तरीके से जो है बहुत ज्यादा इनका प्रभाव था भाषा के रूप में, लेकिन धीरे धीरे क्या है चौसर ने लैंग्वेज को जो है इंग्लिश को जिंदा करना शुरू कर दिया, इंग्लिश का यूज करना शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पर देखते हैं द कॉमन एग्जाम्पल्स, the common examples from daily life accounts detail blooming gardens in spring to unique human characteristics। यानी कहने का मतलब है जिंदगी के जो कॉमन है दिन प्रतिदिन के घटनाक्रम को जो है एक तरीके से कोमल गार्डन की तरह, स्प्रिंग की तरह जो है यूनिक जो मानवीय जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इस लैंग्वेज में प्रस्तुत किया जाने लगा। द लैंग्वेज ग्लोरिफाइड themes of beauty, vitality and secular sentiment।
अब यहाँ पर क्या होता है कि इस भाषा से क्या है, भाषा ने क्या थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता को व्यक्त करना शुरू किया, वाइटलिटी, क्वालिटी, सेक्युलर सेंटिमेंट। सेक्युलर सेंटिमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई एक तरीके से धार्मिक कट्टरता नहीं है। अब यानी पूरी संपूर्ण मानवता की बात होने लगी इस पे। ठीक है, वॉइस इज क्लियर, यस और नो? ठीक है, आपको ध्यान रखना ये विशेषता है इसकी। इसके बाद में अगली विशेषता है स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एज की, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिसिज्म। क्यूरियोसिटी मीन्स स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि लोग अब जो है कुछ नई चीज जानने की ओर उत्सुक हो रहे हैं। और दूसरा क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना करना ये है, लेकिन इसके साथ में पहले टीका टिप्पणी नहीं होती थी। राजा महाराजाओं ने कोई काम किया, कोई रचना लिखी, कुछ भी किया, तो उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो है एक नया एरा आया है, नया दौर आया है, इसलिए मैंने बोला ट्रांजिशन फ्री है ना। ये देखिए, The age known for its scathing criticism of the established order and religion, यानी जो पहले से स्थापित आदेश, नया कानून, ये जो कानून है पुराने, ये जो धार्मिक धर्म है, उसके ऊपर जो है क्रिटिसिज्म होने लगा। द चर्च यानी चर्च का, द चर्च यानी चर्च का कंट्रोल ओवर टेम्पोरल अफेयर्स ऑफ कॉमन मैन वाज चैलेंज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी जो चर्च ने दिन प्रतिदिन, एक जो कॉमन व्यक्ति है उसके दिन प्रतिदिन के जो अफेयर है, मामले में दखल अंदाजी करता था चर्च, उसको लेकर के इस ड्यूरेशन में चैलेंज किया गया। तो स्टूडेंट ये सारी बातें इसलिए करना जरूरी है लिटरेचर में कि हम उस पर्टिकुलर एरा के लिटरेचर को समझ सके स्टूडेंट। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भारत के संदर्भ में हम बात करें, तो भारत के संदर्भ में आपने देखा होगा जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो निश्चित रूप से हमारे जो इंडियन राइटर्स हैं उन्होंने आजादी से संबंधित क्रांतिकारी विचार लिखे। तो एक क्या होता है लिटरेचर में, लिटरेचर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरा, लिटरेचर इज बेसिकली इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, द इंसिडेंट हैपनिंग एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स, like social, political, economical, religious, what are the incidents, what are the events are happening at the particular era, and the literature is infused by the particular era. Got it? उसके बाद में हम बात करें, देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन कॉमन मेन्स अफेयर्स। देखिए, रिन्यूड इंटरेस्ट यानी जो अब आम लोगों के जो मामले हैं, आम जनता से पहले लेना देना नहीं था। कॉमन पीपल जो है ना, शासकों के सत्ता के बाहर थे। लेकिन अब क्या है, नई धारणा, नया इंटरेस्ट जगह है, आम लोगों की बात होने लगी है। देयर इज अ थीम ऑफ डेरिजन, romance, especially by Chaucer, the drama takes the prominent stage। देखिए, है ना, यहीं से फिर ड्रामा भी आता है। तो चौसर एक ऐसे हैं जो रोमांस को लेकर के बहुत ही रोमांचकारी, मनुष्य के एक घटनाक्रम, है ना, मनुष्य की भावनात्मक अभिव्यक्ति को उन्होंने अभिव्यक्त करना शुरू किया। और ड्रामा जो है एक प्रोमिनेंट स्टेज, यानी अब जो है लोगों के इंटरटेनमेंट के रूप में ड्रामा भी मंच से परफॉर्म किया जाने लगा। ड्रामे का मतलब क्या होता है, विच इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बाय द डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, देन हम बात करें, द डोमिनेंस ऑफ हिस्टोरिकल फेबल्स एंड रोमांस ऑफ द मिडाइवल एज वाज अचीव्ड फॉर मोर ह्यूमनिस्टिक थीम्स। ठीक है, हिस्टोरिकल फेबल्स एंड रोमांस ऑफ द मिडाइवल, देखिए पुराने जो मतलब मिडाइवल एज में आप कह सकते हैं जो हिस्टोरिकल जो रोमांस रहा है, उसको क्या है, ह्यूमनिस्टिक थीम्स के साथ में जोड़ते हुए, एक तरीके से मानवता के साथ जोड़ते हुए उनको अपनाया गया स्टूडेंट। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट सोशल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स, बहुत ही सामाजिक और बौद्धिक प्रकार का इस ये दौर था, ये आंदोलन था। इस दौर में, ये पूरे एज ऑफ चौसर में, एज वेल एज पावर्टी, अनरेस्ट, रिवॉल्ट का, है ना, गरीबी, अनरेस्ट मतलब अशांति, और रिवॉल्ट है ना, एक तरीके से विरोध का, ये पूरा पीरियड जो है, पूरा पीरियड जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, ये पूरा पीरियड एक आंदोलन जो है ना, ये मूवमेंट्स है, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स है, सोशल मूवमेंट्स है, पावर्टी, अनरेस्ट और रिवॉल्ट का मूवमेंट है। इट हैड द प्लेग, देखिए यहां पर इसी समय क्या हो रहा है, इट हैड द प्लेग कॉल्ड द ब्लैक डेथ। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से रिवीजन, है ना, कॉल्ड द ब्लैक डेथ एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर इंक्वायर। देखिए, एक तरफ जहां पर प्लेग आता है, ब्लैक डेथ होती है, आधी से अधिक आबादी का देहांत, डेथ हो जाती है, तो दूसरी तरफ जो है स्टूडेंट साइंटिफिक टेम्पर, एक वैज्ञानिक सोच, है ना, और खोज का विकास होता है।
और यहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट। आप सोच सकते हैं 1340 से 1400 में, यानी लगभग आज से 6 से 700 साल पहले इंग्लैंड जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को पहचान चुका था और औद्योगिकरण की ओर बढ़ चुका था। यही कारण है कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज किया है। क्लियर है स्टूडेंट? एवरीवन इज लिसनिंग? थोड़ा सा सभी लोगों की उपस्थिति हो जाए, प्रेजेंट हो जाए सारे लोग, प्लीज यस 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 कर, वाई लिख दीजिए, वाई। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, वाई लिख दो। इफ यू आर लिसनिंग राइट डाउन वाई। सारे लोग कौन कौन उपस्थिति में है ना, मुझे पता चल जाएगा। यस, वाई लिखिए सारे लोग। ओके, चलिए देन हम बात करें। इट हैड ग्रेट क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च एज वेल एज द सेलिब्रेशन ऑफ कामनर। देखिए अब यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा था। पहले मैं फिर कह रहा हूं आपको, वंस अगेन अंडरस्टैंड। एक तरफ हो गया शासक वर्ग, है ना, एक तरफ शासक वर्ग है, दूसरा कौन है, चर्च है, और तीसरा मिडिल जो थोड़ा सा चर्च और शासक के साथ में जो एक जुड़ने का काम कर रहे हैं वो है, और फिर आप चौथे नंबर पे आप कॉमन लोग हैं, और भी ऐसे हायरार्की बनी हुई है। तो अभी तक होता क्या है, जो शासक वर्ग है वो चर्च की बातों को मानता था, है ना, आम जनता तक उसकी पहुंच नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये बैरियर्स, ये जो दीवार थी वो दीवार अब टूटने लगी है स्टूडेंट। इट हैड ग्रेट क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च एज वेल एज द सेलिब्रेशन ऑफ कॉमनर्स। यानी ये जो टाइम था स्टूडेंट, है ना, ये जो टाइम है, ये चर्च की बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रिटिसिज्म होने लगा, और आम लोग क्या है, सेलिब्रेट करने लगे। इट इज ऑफन रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर टू द रेनेसा मूवमेंट ऑफ द एलिजाबेथन एज। स्टूडेंट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ठीक है, याद रखना, एज ऑफ चौसर को प्रीकर्सर टू द रेनेसा मूवमेंट ऑफ द एलिजाबेथन एज। आगे हम जो है एलिजाबेथन एज के रेनेसा मूवमेंट को देखने वाले हैं। एज ऑफ चौसर को रेनेसा मूवमेंट का एक आरंभिक काल कहा जाता है। समझ में आया ये सारनो? यानी अंकुरण जो है, जर्मिनेशन यहां से हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये पहली विशेषता हमने बात करी लैंग्वेज को लेकर के, और क्यूरियोसिटी और उत्सुकता को लेकर। अब जो इसकी अगली विशेषता है स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करें प्रोज की। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रोज, आप देख सकते हैं, you can see English prose had its beginning in this age। धीरे से अब प्रोज भी लिखा जाने लगा है। प्रोज का सीधा मतलब है जो अभी मैं आपके सामने जो लिख रहा हूं, मैं आपके सामने जो कंटेंट पेश कर रहा हूं, ये एक प्रोज फॉर्म ही है ना। जो पीपीटी आपके सामने आ रही है, और वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, वट एवर आई एम स्पीकिंग, दैट इज प्रोज फॉर्म। आप यूं कह सकते हैं कि सीधे सरल भाषा में लिखा गया है ना। हम बाद में देखेंगे इसमें और डिटेल में। इंग्लिश प्रोज हैड इट्स बिगिनिंग इन दिस एज, एक तरीके से शुरुआत है, ड्यू टू द राइपनिंग ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। द प्रोज कुड नाउ बी एक्सपेरिमेंटेड विद, ठीक है, ड्यू टू द राइपनिंग की वजह। यहाँ राइपनिंग, राइप भी हो सकता है, राइपनिंग ऑफ द लैंग्वेज। राइप का मतलब क्या होता है, परिपक्वता आना, है ना। राइप का मतलब क्या है, परिपक्वता, भाषा परिपक्व होती जा रही है, और इसलिए प्रोज लिखने का भी एक्सपेरिमेंट किया जाने लगा है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो बाइबलिकल ट्रांसलेशन है, आप देखिए बाइबलिकल ट्रांसलेशन ऑफ जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन भी किया है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर ऑफ इट, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो जॉन वाइक्लिफ है उन्होंने जो है बाइबलिकल यानी जो बाइबल है उसका ट्रांसलेशन किया है। अब यहां मैं एक चीज और बता दूं, चर्च के में क्या होता है, जो चर्च के पादरी हैं, what would they do actually, the explanation, है ना, they used to give the explanation of Bible according to their own self। क्लियर है? बाइबिल का अनुवाद कह लो, बाइबिल के क्या भावना है,
है ना, उस बाइबल की बातों को चर्च के क्लर्जीमैन जो है, पादरी जो है, वो अपने हिसाब से व्याख्या करते थे। लोगों तक बाइबल में एक्चुअल में लिखा क्या है पहुंची नहीं थी। लोग बाइबल को पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, लोगों तक बाइबल की पहुंच नहीं है। तो क्या हो रहा था कि वो मनमाने तरीके से अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए उसकी व्याख्या करते थे। लेकिन अब चूंकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने लगा है, अब लोग उसको खुद पढ़ने लगेंगे, तो फिर समझ में आता है कि लिखा तो कुछ एक्चुअल में ऐसा है और हमको अब तक ऐसा बताया गया है। तो फिर जो है चर्च का विरोध बढ़ता है। गॉट इट स्टूडेंट? द प्रोज राइटिंग इज बोथ ओरिजिनल एंड इंडिविजुअल, है ना, ओरिजिनली भी लिखा गया और इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भी लिखा गया। देयर आर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स लाइक दैट ऑफ थॉमस मेलर, किंग आर्थर, ठीक है, एंड आल्सो डिजायर टू शेड द ग्रीफ ऑफ लैटिन एज सीन इन डिमांड फॉर इंग्लिश बाइबल। स्टूडेंट यहाँ पर मतलब मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, जो लैटिन है या जो मिडिल इंग्लिश है ना, जिसके बाद लिखा जाने लगा है, इसमें अब क्या है, कहीं ना कहीं जो है वर्क लिखे जाने लगे हैं। लेटिन को बिल्कुल छोड़ा नहीं गया है, हाँ बिल्कुल। अब चूंकि आप देखते होंगे अभी भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा, आप पढ़ते हैं कि ये वर्ड जो है लेटिन के इस शब्द से बना है। ऐसा पढ़ते हैं सर नो? कई बार आपने किसी शब्द का ओरिजिन देखते हैं, या आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेसी जो है लेटिन के इस शब्द से बना है ना, डेमोस। तो इस तरीके से हम लोग कई बार पढ़ते हैं। तो ये एक अब एक तरीके से मिक्सचर हो चुकी है अब लेटिन इंग्लिश सारी चीजें। क्लियर है? थॉमस मेलोरी, है ना, किंग आर्थर, ये सारे वर्क प्रोज के रूप में लिखे जाने लगे। अब यहाँ पर एक चीज और है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ एलिगोरी वाज रिफाइंड, ठीक है। एलिगोरिकल वर्क होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ एलिगोरी वाज रिफाइंड इन दिस पीरियड। एलिगोरी मतलब ऐसी बात, है ना, जो एक कल्पनाओं में, सपनों में, है ना, इस तरीके से कही जाती है, तो उसको अब नए सिरे से लिखा जाने लगा है। जॉफ्री चौसर के सारे वर्क जो है ड्रीम एलिगरी में या ड्रीम विजन में लिखे गए हैं, है ना, जो फ्लैशबैक में लिखे जाते हैं। देयर वाज अ रिटर्न, फ्लैशबैक या सपनों की दुनिया में लिखे जाते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा हुआ होता, ऐसा हुआ है, इस तरीके से। तो there was a return of alliteration which had been replaced with rhymes in the middle ages। स्टूडेंट ये अलंकार है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, राइम्स हैं, इसके हम लोग लैंग्वेज में जो आगे आएगा उसमें हम प्रोसडी वगैरह में इसको हम देखेंगे। क्लियर है? तो इनका भी ओरिजिन शुरू हुआ है, फिर से रिटर्न हुआ है। द प्रोमिनेंट प्रोज राइटर्स, इसमें देखें तो चौसर के एज के जो प्रोमिनेंट प्रोज राइटर स्टूडेंट, पोएट्री नहीं, इसमें पहला नाम है, आप देखेंगे जॉन ऑफ ट्रेविसा, जॉन वाइक्लिफ, ये बड़े नाम है प्रोज राइटर्स में। देयर इज आल्सो ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश वर्क्स लाइक बार्बर। ये देखिए, ये बार्बर जो स्टूडेंट स्कॉटिश वर्क है, इसका भी प्रोज राइटिंग में इंग्लिश में बहुत प्रभाव पड़ा है। फिर पोएट्री की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर एज ऑफ चौसर जो है सा द बर्थ ऑफ इंग्लिश पोएट्री। स्टूडेंट देखिए, जॉफ्री चौसर को ही द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। रिमेंबर ये सार नो, आई होप यू रिमेंबर इट, है ना। जोफ्री चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। द एज ऑफ चौसर सा द बर्थ ऑफ इंग्लिश पोएट्री, है ना, इसी एज में इंग्लिश पोएट्री का जन्म हुआ। इन चौसर्स एज पोएट्री कंटिन्यू टू फ्लोरिश एंड एज्यूम द अनपैरेलल्ड पोजीशन, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका विकास हुआ है जोफ्री चौसर के एज में। द मोस्ट नोटेड पोएट्स ऑफ दिस एज वर, पोएट्स की हम बात करें तो चौसर है, जॉन गोवर है, विलियम लैंगलैंड है, आगे लिस्गेट है, अलग अलग जो है हम देखेंगे, ठीक है। इसी में हम बात करें तो स्पेंसर became the father of poetic diction as there was no poetic diction before this age। पोएटिक डिक्शन के ये फादर बन गए थे, ठीक है ना। आप द पोएट्री सा द अमेलगमेशन ऑफ रिलीजन, ह्यूमनिज्म एंड सेक्युलर पैशन। अमेलगमेशन का मतलब है वही कह रहा हूं, मिक्सचर है, मिश्रण है। ये पोएट्री क्या है, रिलीजन, ह्यूमनिज्म, मानवता, और सेक्युलर सेक्युलर का मतलब है एक पर्टिकुलर धर्म नहीं, सामान्य मानवीय धर्म की बात होने लगी है, मानव धर्म की, इंसानियत की बात होने लगी है, दैट इज सेक्युलर पैशन। और रिलीजन की बात होने लगी है। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है। कहां पर? पोएट्री में। कौन सी एज में? एज ऑफ चौसर में। यस आर नो? फिर देयर वर न्यू फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, कुछ नए फॉर्म्स आए पोएट्री के, नैरेटिव पोएट्री, डिस्क्रिप्टिव पोएट्री, दैट वर इनहैंस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। नैरेटिव मतलब एक कहानी के रूप में,
यानी जो जो कहानियां हैं उसको जो है नरेशन फॉर्म में कहा गया है, एपिक फॉर्म में कहा गया है, डिस्क्राइब करके कहा गया है, ये नए नए फॉर्म है। टॉसर हिमसेल्फ वाज नोन फॉर, है ना, ट्रेंचेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बहुत बारीकी से इन्होंने ऑब्जर्व करके बहुत सारी बातें लिखी हैं। He was sociable, loved mingling with people from diverse backgrounds, as evidenced in his work The Canterbury Tales. स्टूडेंट मास्टरपीस है पूरी इस एज का, क्लियर है, ये जो है पूरा मास्टरपीस है। इस पूरी मास्टरपीस में उसने क्या किया है, पूरे सामाजिक ताने बाने में जो अलग अलग लोग हैं समाज में, वहां इंग्लैंड में रहने वाले, उन सभी लोगों को उन्होंने क्या है सम्मिलित करके पूरी कैंटरबरी टेल्स को लिखा है। हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इन इट, आगे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में। इन इट ही हैज बीन एबल टू पेन मिनट पेक्युलरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, पेक्युलरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। उन्होंने क्या करा है कि मनुष्य की जो अलग अलग प्रवृत्ति है उसको जो है ना, उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। क्या सोचते हैं, अलग अलग सामाजिक स्टेटस होता है लोगों का, उनका क्या सोच है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। चौसर यूजेस 7 लाइन स्टेंजा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और स्टेंजा A B, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से A B B, है ना, C। इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन और इसका राइम मिलेगा लास्ट में, ठीक है। ये C है ना, ये C है तो इसका राइम मिलेगा लास्ट में, व्हाट इज स्टूडेंट, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है ये पूरा इसको हम समझेंगे, ये राइमिंग स्कीम, यानी जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, लास्ट में राइमिंग की टोन मिलती है। मान लें इस लाइन का और इस लाइन की टोन मिल रही है तो इसको बोलेंगे बी या ए, फिर इसका और इसका मिल रहा है तो सी, इस तरीके से, गॉट इट स्टूडेंट, ठीक है। कुछ पोएम्स आएंगे तो मैं आगे बताऊंगा आपको। देयर इज लिबरल यूज ऑफ ह्यूमर, लिबरल यूज ऑफ यानी अब ह्यूमर का, हंसी मजाक का भी, कहीं ना कहीं हास्य का भी यूज होने लगा है। देयर इज एन इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन सेंटिमेंट लाइक द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये भी जो है चौसर के द्वारा लिखी गई है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, है ना। ह्यूमन सेंटिमेंट को व्यक्त किया जाने लगा है इस एज में, व्हाट इज स्टूडेंट। अब यहां पर आप देखेंगे चलिए, नॉर्मली Chaucerian poems are divided into 3 stages। अब हम बात करें स्टूडेंट चौसर की, यानी जो जॉफ्री चौसर की, तो ये जो है ना 3 भागों में बांटी गई है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, लेट मी टेल यू। हम अभी जॉफ्री चौसर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ जॉफ्री चौसर बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जॉफ्री चौसर ने क्या, एक डिप्लोमेट भी थे ये, 3 शासकों के, 3 राजाओं के दौर में रहे हैं। हम बात करेंगे कौन कौन है। तो ये क्या डिप्लोमेट थे, इटली गए हैं, फ्रांस गए हैं, है ना, अलग अलग, और इंग्लैंड में तो है ही, तो अलग अलग देशों में इन्होंने डिप्लोमेट के रूप में, इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया था। तो इन्होंने क्या है, अलग अलग दौर में अलग अलग देशों में भाषा वहां के हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो इटालियन जब इनका पीरियड होता है, इटली में जब जाते हैं तो ये द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, है ना, ये एक तरीके से इटालियन जो एरा था इनका वहां प्रभावित है। फ्रेंच जैसे द रोमाउंट एक इनका वर्क है, और इंग्लिश में जैसे द पार्सन्स टेल है। तो ये कुछ ऐसे वर्क हैं। मोटे मोटे रूप में आपको यहाँ पर पीरियड याद रखना है, खास करके जैसे इटालियन है, दूसरा फ्रेंच पीरियड है, और तीसरा है इंग्लिश पीरियड। 3 पीरियड याद रखना, इटालियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है, प्रश्न बन सकता है। However, there is also some criticism for the inordinate length of some speeches and preachy discourse on ethics, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा स्पीचेस है आप देखेंगे चौसर ने भी दिए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इथिकल तरीके से जो है क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर किया गया है। अब यहाँ ये जो पूरी एज है ना स्टूडेंट, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जर्मिनेशन, इसका मतलब होता है बीजारोपण, अंकुरण। मैं फिर कह रहा हूं, अंकुरण या बीजारोपण।
ठीक है, जैसे हम किसी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किसका अंकुरण होता है। मैंने कहा कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ पर नए आइडियाज का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है ना, एक नए विचार उपयुक्त आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर इवन दो देयर वर नो नॉवेल्स आर ड्रामा इन हिज एज, इस एज में कोई ड्रामा या नॉवेल नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी चौसर वर्क डिड प्लांट द सीड्स फॉर इट्स डेवलपमेंट इन द सक्सीडिंग एलिजाबेथन एज। चौसर के जितने भी वर्क हुए, उन्होंने क्या किया है कि एक जो आने वाले इसके बाद में हम देखेंगे एलिजाबेथन, जो उनकी सक्सीडिन यानी इस जो सक्सीडिन एज एलिजाबेथन है, उसके बीजारोपण, उसके अंकुरण का काम क्या है, इसी एज में वो कर दिया। किसने? जोफ्री चौसर के वर्क्स ने। जॉफरी चौसर के वर्क्स ने जो है आने वाली जो एलिजाबेथन एज है उसका काम कर दिया। देखेंगे वो भी एक बहुत बड़ा गोल्डन एज हम देखेंगे आगे। इफ देखिए यहाँ पर द कैंटरबरी टेल्स हैड बीन इन प्रोज एंड डिवाइडेड इनटू सीन्स एंड एक्ट्स, इट वुड हैव बीन द लैंग्वेज फर्स्ट ड्रामा। ये देखिए यहाँ पर कहने का ये कह रहे हैं कि यदि कैंटरबरी टेल्स को प्रोज फॉर्म में लिखा गया होता और यदि इसको सीन्स में, एक्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया होता, तो शायद ये भाषा का पहला ड्रामा होता, है ना। इट वुड हैव बीन द लैंग्वेज फर्स्ट ड्रामा, पहला ड्रामा कहलाता, क्योंकि उसी तरीके से वहां पर लिखा गया है। ठीक है, अब एक और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका स्टूडेंट, इस एज का, वो है द न्यू लर्निंग। मैंने सारे बहुत शानदार तरीके से कंटेंट कलेक्ट किया स्टूडेंट, प्लीज वंस अगेन गो थ्रू द रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दो चौसर्स एज वाज एसेंशियली मिडाइवल, येट सम सॉर्ट ऑफ माइनर रेनेसा वाज एविडेंट। ये देखिए, यद्यपि ये मिडाइवल एज में है, लेकिन कहीं ना कहीं रेनेसा के यहाँ पर एक तरीके से हमें सबूत मिलते हैं। रेनेसा पुनर्जागरण, विश्व इतिहास में पुनर्जागरण एक बहुत बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट। यदि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको विश्व इतिहास में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण क्यों कहा गया, रेनेसा क्यों कहा गया, रेनेसा है ना, रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब पहले बर्थ हुआ फिर रीबर्थ, इसका मतलब ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। हम क्लासिकल एज की बात करेंगे, यानी बीसी, पहले ईसा पूर्व की बात करते हैं, होमेरिक पीरियड का क्लासिकल पीरियड। ठीक है ना, तो उस पीरियड में क्या था कि एक बहुत शानदार, यानी जो प्राचीन इंग्लैंड था या प्राचीन जो क्लासिकल पीरियड था, उस दौर में क्या है, एक बहुत शानदार समाज, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रवृत्ति हुआ करती थी, एक समृद्ध सांस्कृतिक वहां पर समृद्धि हुआ करती थी। लेकिन बीच में दौर ऐसा आया जब लोग सो गए, अंधकार हो गया। बात समझ में आ रही है, कैसे अंधकार हो गया, राजा किंग्स जो है, राजा सत्ता में बैठ गए, देवी सिद्धांतों पर मनमर्जी से सत्ता चलाने लगे, आम जनता पर शोषण, आम जनता का शोषण करने लगे, टैक्स बढ़ाने लगे, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, जनता करा रही है, महिलाओं को अब क्या है, चार दीवारी में कैद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं चर्च जो है वो विलासिता के एक तरीके से केंद्र बन चुके हैं, अंधकार का युग छा गया है। पहले बर्थ हुआ तो बहुत अच्छी जिंदगी थी, लेकिन बीच में अंधकार आया, अंधकार युग आया, लेकिन फिर से द एज ऑफ चौसर के दौर से इसका रिबर्थ हुआ, एक रेनेसा पीरियड आ गया, हम पढ़ेंगे, पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है। गॉट इट स्टूडेंट, उसमें उसमें उसका कारण यह है कि बहुत सारे जो विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने अपने विचार लिखना शुरू किए और उसको जो है आम बोलचाल की भाषा में, लोगों को समझ में आने वाली भाषा में उन्होंने अपने साहित्य को प्रस्तुत करना शुरू किया। पेट्रार्क, बोकाशियो, दांते, है ना, आगे हम रूसो, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों ने अपने विचार लिखे हैं, है ना, मेकियावली। ठीक है, तो ये सारे जो है राइटर्स आप देखेंगे, तो इस पीरियड में हमें न्यू लर्निंग को, नए ज्ञान को, नई, है ना, रिसर्च को हम प्रमोट करते हुए देखते हैं। द फ्रेंच एंड इटालियन कंटेम्पररी राइटर्स इन्फ्लुएंस्ड कंसिडरेबली कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना, जो फ्रेंच और इटालियन उस समय के राइटर्स थे, पेट्रार्क, बोकाशियो, द टू इटालियन, इटालियन है पेट्रार्क और बोकाशियो राइटर, इन पर्टिकुलर एक्सटर्टेड दिस इन्फ्लुएंस। ठीक है, खास करके पेट्रार्क और बोकाशियो ने भी इंग्लिश लिटरेचर को खास करके बहुत ज्यादा प्रभावित किया। गॉट इट स्टूडेंट, यस और नो?
चलिए सी, अब हम देखें, क्लियर हो रहा है? यस और नो? एवरीथिंग इज क्लियर, फाइन, everything is fine? Why is everything is fine? Yes or no, student? Please tell me. चलिए स्टूडेंट, आप देखिए हम यहाँ पर द सीड्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक कल्चर ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स। अब देखिए द सीड्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक, देखिए ह्यूमनिस्टिक कल्चर ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स, यानी प्राचीन जो ग्रीक्स है, यूनान है, टू कैन बी आइडेंटिफाइड इन दिस एज। सीड्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक कल्चर, देखिए ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिज्म, इस शब्द को समझिए स्टूडेंट, प्लीज लेट मी टेल यू। ह्यूमनिज्म का मतलब ये होता है मानवता, मानवीयता, जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम, भाईचारे, सद्भाव के साथ रहता है। इन ह्यूमनिज्म people, you can say, they feel that they are brother and sisters. There is a lot of brotherhood among them, there is fraternity among them, and they believe in justice, they believe in equality, they believe in freedom. They don't dominate each other, वे एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते हैं। दैट इज ह्यूमनिटी स्टूडेंट। तो ये प्राचीन काल में थी, लेकिन धीरे धीरे इसका क्या है, शासकों ने, सत्ता ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए, क्या है, ये जो ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को क्या करा, खत्म कर दिया और मानवाधिकार को समाप्त कर दिया। और क्या करा, सब जो निचले तबके के जो कॉमन लोग थे उनको कई समस्याओं में डाल दिया। तो लेकिन वापस रीबर्थ हो रहा है इसका, समझ में आ रहा है? यस और नो? The clerk of Oxenford represents the new intellectual culture which had percolated into 14th century England before Renaissance. क्लियर है? तो ये क्लर्क ऑफ ऑक्सेनफोर्ड है ना, ये जो है नई बौद्धिकता को व्यक्त करता है। He is an austere scholar who prefers 20 books of Aristotle's philosophy on his bed's head to gay cloths and musical instruments. He is an austere scholar. Student, सारे तथ्य पे बहुत डिटेल में गंभीर, बहुत ज्यादा ये जाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मोटे मोटे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अरिस्टोटल की जो फिलोसॉफी है ना, 20 बुक्स ऑफ अरिस्टोटल्स फिलोसॉफी। अरिस्टोटल बहुत बड़े मानवतावादी रहे हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है ना, आप इनके कहीं ना कहीं आपको नाम सुनने में मिलेंगे। तो उनके बारे में उन्होंने जो मानवतावादी बातें लिखी हैं उसको भी इंग्लिश में अभिव्यक्त किया जाने लगा है। तो इस तरीके बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं, लैंग्वेज के बारे में हमने देखा, क्यूरियोसिटी के बारे में हमने देखा, पोइट्री का ओरिजिन हमने देखा, है ना। फाइनली जो है इस तरीके से हमने बहुत सारे जो ओरिजिन यहाँ पर हमने देखे कि एक तरीके से जो एज ऑफ चौसर है वो एक तरीके से ये प्रीकर्सर है एज ऑफ एलिजाबेथन का, एज ऑफ रेनेसा का। Got it, student? Now let us discuss one of the most interesting topic, one of the most important, very IMP topic, जोफ्री चौसर। एज ऑफ चौसर क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा काम जोफ्री चौसर का है, और इसलिए उनके नाम पे, उनके काम से ही इस एज को जाना जाने लगा है। गॉट इट स्टूडेंट? यस और नो? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इनके जन्म को लेकर के, है ना। देयर इज अ डाउट, है ना, कहीं पर 42 मिलता है, कहीं पर 43 है। तो एक अप्रोक्सीमेटली जो है 1343 से 1400, लेकिन बड़े मोटे मोटे रूप में 1340 से 1400 माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉफ्री चौसर का आप देख सकते हैं 1343 से 1400 तक, ठीक है ना, इनका जो एज है। अब बात करें अपन कौन है जॉफ्री चौसर, क्या है उसकी बात करें हम, तो आप देख सकते हैं जॉफ्री चौसर बोर्न इन 1342 और 43 लंदन में। कहां पर जन्म हुआ इनका? लंदन में, इंग्लैंड में। और डाइट कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई है? अक्टूबर 25, 1400 में। लगभग 110 साल, 108 साल इनकी उम्र रही। द आउटस्टैंडिंग इंग्लिश पोएट, बेसिकली ही वाज एन इंग्लिश पोएट। अब देखिए यहां पर क्या है, जोफ्री चौसर वाज बोर्न इन द रेन ऑफ, रेन मतलब शासन में, ये रट लेना स्टूडेंट, प्रश्न कई बार पूछा गया है। एडवर्ड थर्ड, है ना, किनके शासनकाल में? इन्होंने 3 राजाओं का शासनकाल देखा। कौन कौन है स्टूडेंट? एडवर्ड थर्ड है, रिचर्ड सेकंड है और हेनरी फोर है। ठीक है, ये 3 राजाओं का शासनकाल देखा था। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न, है ना, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, गॉट इट?
Remember once again, memorize it. Edward III, Richard II, Henry IV. Edward III, Richard II and Henry IV. Got it? हम बात करें यहाँ पर, his life thus covers a period of glaring social contrast and political change. यानी इनकी जो जिंदगी है वो उस पीरियड को देखती है जब सामाजिक बदलाव हो रहा है, राजनीतिक चेंज परिवर्तन आ रहा है ना, सामाजिक विरोधाभास हो रहा है, अलग अलग है ना, किस तरीके से कॉमन व्यक्ति अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा, जागरूक हो रहा है, उस पीरियड को जोफ्री चौसर विटनेस करते हैं। हम बात करें यहाँ पर एडवर्ड्स रेन, यानी एडवर्ड्स यानी जो थर्ड है, देखिए एक बार फिर से है ना, ये से एडवर्ड थर्ड की बात हो रही है, यू कैन सी एडवर्ड्स रेन मार्क्स द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ मिडाइवल सिविलाइजेशन, है ना, ये जो जो सभ्यता है, मध्यकालीन सभ्यता है, उसका सर्वाधिक विकास एडवर्ड के काल में हुआ। द स्पिरिट ऑफ द कोर्ट वाज दैट ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म, कहीं ना कहीं जो कोर्ट की स्पिरिट है या न्याय, एक तरीके से अदालतों की प्रक्रिया है, रोमांटिक आइडियलिज्म है ना, उसका जो है इस दौर में कहीं ना कहीं विकास सबसे ज्यादा हुआ है। इंग्लैंड वेंट फोर्थ ऑन फॉरेन कंक्वेस्ट, ये देखिए इंग्लैंड वेंट फोर्थ ऑन फॉरेन कंक्वेस्ट, देखिए फोर्थ मतलब आगे बढ़ा, कहा इस दौर में इंग्लैंड जो है अब क्या है, फॉरेन कंक्वेस्ट यानी विदेशों में जीत के लिए, विक्ट्री के लिए अब इंग्लैंड आगे जाने लगा है ना। बट देयर वाज अनदर साइड ऑफ दिस, अब देखेंगे यही कारण है भारत में भी आए वो व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या है, शासन भी किया यहाँ पर। फिर इसी एज में एक और हमें देखने को मिलता है ट्रेड एक्सपेंडेड, व्यापार का बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ, विस्तार हुआ। वेल्थ इंक्रीज्ड अमंग द कमर्शियल क्लासेस, द पीपल हु बिलोंग्स टू कमर्शियल क्लासेस हु आर डूइंग ट्रेड, है ना, बिजनेसमैन, सो देयर वेल्थ इंक्रीज्ड, उनकी बहुत ज्यादा धन संपदा में बढ़ोतरी हुई। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू ये था, बट द मासेस ऑफ पीपल सैंक इन माइजरी, सिंक का सेकंड फॉर्म है ना, सिंक मतलब डूबना। लेकिन ये जो धन दौलत संपदा बढ़ रही है, एक नया वर्ग है ना, एक कमर्शियल वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है, उसकी तो धन संपदा बढ़ रही है, लेकिन जो ज्यादा जनसंख्या है, जो मासेस ऑफ पीपल है, वो क्या है, अभी भी है ना, वो अभी भी क्या है, माइजरी में या गरीबी में, वंचन में, है ना, अभी भी डूबे हुए हैं, गरीबी में डूबे हुए हैं। देखिए यहाँ पर he was captured, अब देखिए when we talk about जोफ्री चौसर स्टूडेंट, ही यहाँ पर कौन है, जोफ्री चौसर। So Geoffrey Chaucer was captured by French during Brittany expedition of 1359। देखिए लगातार जो है ब्रिटेन का अनेक देशों के साथ फाइट होते रही, उसमें फ्रांस एक शामिल है। फ्रांस ने क्या हुआ, इसी बीच में जो है एडवर्ड थर्ड के सबसे प्रिय, आप देखेंगे उसको जो उन्होंने कैप्चर कर लिया, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंच ने क्या करा, द फ्रेंच, देखिए स्टूडेंट ये द जब लग जाता है, आपको मालूम होगा शायद, किसी भी भाषा के पहले द लग जाता है तो ये भाषा नहीं है। अब यहाँ द फ्रेंच का मतलब है द फ्रेंच पीपल, द नेशन, फ्रांस देश की बात होती है, राष्ट्र की बात होती है, मालूम है कि नहीं। जैसे द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब है यहाँ पर इंग्लैंड या द इंग्लिश पीपल या पीपल ऑफ इंग्लैंड, ये सर नो, किसी भी लैंग्वेज के पहले द लग जाता है तो उसका मतलब वो नेशन या वहां के लोग हो जाते हैं, ये सर नो, गॉट इट। तो ग्रामेटिकली भी आपको समझना है। अब देखिए जब जोफ्री चौसर को कैप्चर कर लिया जाता है ना, तो क्या होता है, इनके लिए एक बहुत बड़ी रैंसम या यूं कहें कि फिरौती दी जाती है ना, और राजा के द्वारा इनको छुड़ाया जाता है। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट था जोफ्री चौसर का, है ना, इनको कैप्चर कर लिया जाता है लेकिन बहुत सारी फिरौती देकर के इनको छुड़ाया जाता है, गॉट इट। फिर हम बात करें एडवर्ड थर्ड, लेकिन बाद में जब उनको एडवर्ड थर्ड ने रेंसम दे करके उनको छुड़ा लिया, फिर बाद में वापस क्या है, उनको फ्रांस में ही डिप्लोमेटिक मिशन पर भेजा, है ना। आप डिप्लोमेटिक मिशन पर भेजा यानी अब देश का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हुए, जैसे हमारे एम्बेसडर होते हैं, आप लोग जानते होंगे। डिप्लोमेटिक मिशन का मतलब जैसे भारत है अभी, तो भारत के बहुत सारे एम्बेसडर जो है आप देखेंगे अमेरिका में, ब्रिटेन में, चाइना में, है ना, अलग अलग देशों में, इटली में, है ना, रूस में, अलग अलग देशों में इंडिया के डिप्लोमेट होते हैं स्टूडेंट।
है ना, वो जो है वहां पर भारत सरकार और वहां की सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। दे जॉइंट, भारत सरकार को वहां की सर कुछ कहना है तो वो अपने डिप्लोमेट के माध्यम से वहां की सरकार तक अपनी बात पहुंचाती है। मान लो अमेरिका में है कोई हमारा डिप्लोमेट, तो अमेरिका की सरकार कुछ कहना चाहती है तो डिप्लोमेट के माध्यम से वो हमारे तक पहुंचाती है। गॉट इट? ये डिप्लोमेटिक मिशन पर पहुंच गए। ही आल्सो ट्रेवल्ड गुआना एंड फ्लोरेंस, गुआना है ना जो है, ये सॉरी जिनोवा, सॉरी जिनोवा एंड फ्लोरेंस, बहुत बड़े ये उस समय के खनिज संपदा से भरपूर ये प्लेस हुआ करते थे। स्टूडेंट बहुत बड़े लड़ाई के कारण भी रहे हैं, तो यहाँ पर ये विजिट करते हैं उन जोफ्री चौसर। व्हाट इज स्टूडेंट? चलिए फिर हम बात करें आगे। तो पेस्टिलेंस रिवेज्ड द लैंड, ब्लैक डेथ स्वेप्ट अवे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पर पेस्टिलेंस रिवेज्ड द लैंड, यानी जो एक तरीके से पेस्टिलेंस, या आप यूं कहें कि जो भूमि है, फ्यूडल सिस्टम है ना, वो क्या एक तरीके से बहुत ज्यादा उस भूमि उतनी प्रोडक्टिव नहीं रही है। ब्लैक डेथ ने लगभग 1/3 पॉपुलेशन को समाप्त कर दिया है। ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। दूसरा हम देखें यहाँ पर फेमिनाइन फॉलोड प्लेग। फेमिनाइन का मतलब होता है भुखमरी, है ना, फेमिनाइन का मतलब होता है भुखमरी, है ना। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, फेमिनाइन फॉलोड प्लेग, जिसके कारण ब्लैक डेथ हुई है ना। और सूखा मतलब अब जो है यहाँ पर अब कुछ भी, है ना, पूरी खाली है जमीन, बंजर है ना, लोगों को भोजन के लाले पड़े हैं, तो चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब, है ना। मतलब एक तरीके से क्या ना, बहुत ज्यादा सामाजिक उथल पुथल मची हुई है। लोग, द एनॉर्मस कॉस्ट ऑफ फ्रेंच, और इस दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एनॉर्मस कॉस्ट ऑफ फ्रेंच वार्स, यानी फ्रांस के साथ में बहुत सारे युद्धों में ब्रिटेन लगा हुआ है, टू बी मेड बाय हैवी टैक्सेशन। और उसका कारण क्या हुआ कि लोगों के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाना पड़ा, क्योंकि युद्ध में सैनिक चाहिए, साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, और उसके लिए क्या है, टैक्स, पैसा चाहिए, धन चाहिए। कहां से आएगा? लोगों के पास से आएगा। आम जनता, टैक्स, आम जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाने लगा, और उससे आम जनता त्राही त्राही होने लगी। गॉट इट? देयर वाज वाइड स्प्रेड ऑफ सोशल, और यही कारण रहा कि इससे क्या है, सोशल अनरेस्ट हुआ। पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो रहा हल्का सा, ठीक है। रिपीटेडली यहाँ लिखा हुआ है, ही वाज बोर्न बिटवीन 1345, ये एक मतलब लंदन में। हिज फादर वाज प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट। देखिए, है ना, वाइन मर्चेंट थे, सोचिए बहुत बड़े उस समय के, है ना, शराब के क्या कारोबारी थे, तो आप सोच सकते हैं। और इन 1357, in 1357 he worked in the household of, या he worked as a page, है ना, पोस्ट हुआ करती थी, हाउस होल्ड ऑफ एलिजाबेथ डी बर्ग, काउंटेस ऑफ अल्स्टर, या वाइफ ऑफ प्रिंस लियोनिल, है ना। यहाँ पर भी उन्होंने, अब देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, हम जॉफ्री चौसर के बारे में बात करें तो जॉफ्री चौसर ने बहुत सारे, बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो शासक वर्ग या सत्ता से, या यूं कहें कि जो वहां का जो क्या बोलते हैं, हाउस, एक तरीके से जो सत्ता है, शासक है, राजा महाराजा का जो रहना है, वहां पर इनका आना जाना था। किंग के पैलेस में, किंग पैलेस में आना जाना था, तो बहुत करीबी थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने काम किया है। एलिजाबेथ डी बर्ग जो कि काउंटेस ऑफ अल्स्टर थी, वहां पर भी उन्होंने काम किया है ना, कि पेज ऑफ, है ना, ऑफ द हाउस होल्ड। उसके बाद में क्या हुआ, अराउंड 36 में इनको एक और इनकी सॉरी मैरिज हुई है फिलिपा रॉयड से। प्रश्न पूछा जा रहा है ना, चौसर की शादी हुई थी फिलिपा रॉयड से, अ लेडी इन वेटिंग इन द क्वींस हाउस होल्ड, क्वींस हाउस होल्ड, क्लियर है, वेटिंग इन द क्वींस हाउस होल्ड, क्लियर है। तो क्योंकि ये भी जो है हाउस होल्ड में ही काम कर रहे थे, तो ये वहां पर इनके साथ जुड़ जाती है। आप देखेंगे एडवर्ड थर्ड के बेटे हैं, है ना, किंग ऑफ गांट, उन उनकी वाइफ, और ये जो फिलिपा रॉयड है, ये दोनों बहनें हैं। आगे हम देखेंगे कहीं ना कहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर फिलिपा सिस्टर कैथरीन, ये देखिए कैथरीन स्वाइनफोर्ड, लेटर बिकम द थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ ग्वांट, है ना। ये जो किंग्स फोर्थ सन, ये चौथे बेटे थे जॉन ऑफ ग्वांट और चार्ल्स पेट्रन। देखिए एक तरीके से एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर चौसर की वाइफ का नाम फिलिपा रॉयट है, इनकी बहन का नाम है कैथरीन स्वाइनफोर्ड, है ना।
इनकी शादी होती है एडवर्ड थर्ड के बेटे जॉन ऑफ गॉन्ट से, यानी एक तरीके से ये साड़ू भाई हुए, है ना। किंग का बेटा जॉन ऑफ ग्वांट और चौसर जो है दोनों साड़ू भाई हुए, और यही कारण है कि ये चौसर्स के पैटर्न भी बन गए। पैटर्न का मतलब संरक्षक हो गए उसके। गॉट इट स्टूडेंट? रिमेंबर? यस आर नो? पूछा जा सकता है, कौन नहीं है। In 1374, Chaucer was appointed comptroller of the lucrative London customs. स्टूडेंट कंट्रोलर है ना, यानी एक तरीके से अकाउंटेंट के रूप में भी इनको नियुक्ति मिल गई लंदन कस्टम्स में। जैसे हमारे यहाँ पर आजकल सीएजी काम करता है, बहुत सारे अकाउंटेंट काम करते हैं। फिर इन 1386 में ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर केंट। केंट प्रदेश है, वहां से इनको जो है सांसद भी चुन लिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड आल्सो सर्वड अ जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस भी नियुक्त किया जाता है। बहुत सारे, मैंने कहा ना, ही होल्ड, या यू कैन सी ही हैड होल्ड मेनी पोस्ट। बहुत सारी पोस्ट को इन्होंने होल्ड किया था। फिर हम बात करें इन 1389 ही वाज मेड क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स और सिंग लॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, है ना। ही वाज मेड क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क। अब यहाँ पर देखो 89 में क्या हुआ, किंग का जो काम है उसका क्लर्क बना दिया गया इनको। ओवरसीइंग लॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, है ना। लॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को भी इनके देखरेख की इनको जिम्मेदारी देते हुए क्लर्क का आप सोच, क्लर्क बना दिया गया है किंग का, यानी किंग से इनके डायरेक्ट जुड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं एक बड़ी हस्ती है जॉफरी चौसर। He held a number of royal posts, serving both Edward III and his successor Richard II. ठीक है, तो रिचर्ड सेकंड और एडवर्ड थर्ड, इन दोनों की उन्होंने सेवा करी है और बहुत सारी रॉयल पोस्ट को इन्होंने सुशोभित किया था। चौसर लिव्ड ड्यूरिंग, अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पर मेमोराइज करना है, किसके समय में रहे? एडवर्ड थर्ड के समय में रहे ये। अगेन लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट, चौसर लिव्ड अंडर 3 किंग्स, है ना। 3 राजाओं के शासनकाल में इन्होंने काम किया है। 1327 से 1377 तक एडवर्ड थर्ड का शासन रहा, ठीक है। फिर हम बात करें रिचर्ड सेकंड 1377 से 1399, हेनरी फोर्थ 1399 से 1413। तो ये जो है एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ, है ना, इनके दौर में जो है जॉफरी चौसर रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ी क्लास लंबी चलेगी, चलेगा? यस आर नो? गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, रिमेंबर, so until now you have come to know about the Geoffrey Chaucer. He was the very famous, one of the well known, respectable, honorable, you can say writer, poet, personality, and he was very close to the king, ठीक है। He worked under the 3 kings, Edward III, Richard II and Henry IV, and that is the reason, है ना, you can say he was sent to the in the different countries for the diplomatic mission, and he has written a lot of works. सोचिए आप यहाँ पर एक थोड़ी सी काम की बात करते हैं स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस। लेट मी टेल यू, लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट, सोचिए एक इंसान 3 राजाओं के शासन काल में काम भी कर रहा है ना, अलग अलग डिप्लोमेटिक मिशन के लिए अलग अलग देशों में भी जा रहा है, और साथ ही इतने लेख भी लिख रहा है, राइटिंग्स लिख रहा है, कविताएं लिख रहा है, कैंटरबरी टेल्स विश्वविख्यात अभी तक हम पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि अनलिमिटेड होती है कि इंसान की क्षमता, हम चाहे तो बहुत सारे काम, है ना, मतलब बहुत हम सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं स्टूडेंट। हमारी प्लानिंग वैसी होना चाहिए, मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्लानिंग ठीक है तो काम बहुत अच्छे से हो सकते हैं, हम कर सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की हम चर्चा करें कि जब इनकी डेथ हुई स्टूडेंट, जब इनकी डेथ हुई 1400 के आसपास, ही वाज फर्स्ट पोएट, पहले पोएट थे जिनको ब्यूरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे, नाउ नोन एज द पोएट्स कॉर्नर। स्टूडेंट ये जो वेस्टमिनिस्टर एबे है, ध्यान रखना क्या नाम है, वेस्टमिनिस्टर एबे,
वेस्ट मिस्टर एबे, अब इसको आजकल द पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाने लगा है। एक्चुअल में होता क्या था, ये जो वेस्ट मिस्टर एबे है, इसमें परंपरा ये रही है कि यहाँ पर केवल और केवल उन्हीं लोगों को दफनाया जाता था जो रॉयल फैमिली के हैं। रिमेंबर इट, है ना? द पीपल, या द यू कैन से दोज हु बिलोंग टू रॉयल फैमिली, ओनली दे वर ब्यूरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे, बट जॉफ्री चौसर वाज द फर्स्ट पोएट टू बी ब्यूरीड हियर। गॉट इट स्टूडेंट? समझ में आया कि नहीं? और आजकल इसको द पोएट्स कॉर्नर, जॉफ्री चौसर को यहाँ पर रॉयल फैमिली का जो स्थान है ना, इनको दफनाया गया था। आपको मालूम है चर्च, ये जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं दफनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ब्यूरीड किया गया है। आप ये पहले पोएट है, अब क्या है, पोएट्स कॉर्नर बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जोफ्री चौसर के बाद भी जो लीजेंड, जो सर्वाधिक बहुत महत्वपूर्ण पोएट है, उनको वहां पर दफनाया जाने लगा है। कुछ गिनती के पोएट्स के नाम हैं, आगे हम देखें कहीं ना कहीं पढ़ने में आएगा। या आपके बीच में छोड़ता हूं कि किनको किनको अब तक जो है पोएट्स कॉर्नर के ऊपर ब्यूरीड किया गया है, दफनाया गया है। गॉट इट स्टूडेंट? गॉट इट, यस आर नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से कुछ फैक्ट हैं जो लोगों ने, कुछ विद्वानों ने जोफ्री चौसर के ऊपर टिप्पणियां करी है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट अस डिस्कस। अर्नोल्ड एक राइटर है, कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। देखिए, रिमेंबर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कह लो, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कह लो। गॉट इट? है ना? अर्नोल्ड कॉल्ड हिम, किसने कहा है ये भी ध्यान रखना, अर्नोल्ड ने कहा है। ठीक है। फिर इन द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, है ना, इनकी एक रचना है। ये कुछ फैक्ट हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिमेंबर करने के लिए ये सारे मैं लेकर आया हूँ। नोट्स में आपको डिटेल, नोट्स में आपको बहुत डिटेल में और मिलने वाला है। इन द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, तो ये जो लीजेंड्स का मतलब बहुत ही, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध महान जो महिलाएं हैं, उनके बारे में उन्होंने एक वर्क लिखा था, लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन। तो उसमें 9 खास करके महिलाएं हैं, है ना। तो उसमें क्लियोपात्रा है, थिस्बे है, डिडो है, हिप्सिपाइल है ना, मिजिया है, ल्यूक्रेसी है, अरिंडेन है, फिलोमेला है, फाइलिस है, और हाइपरमेनेस्ट्रा है। ठीक है। आप यूं कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पर जैसे देवियां हैं, है ना, माँ सरस्वती हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ लक्ष्मी हैं, या और भी आप उसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, रानी दुर्गावती है, झलकारी बाई है ना। ऐसी विद्वान जो मतलब विदुषी महिलाएं जो हुई हैं, और भी आप कह सकते हैं लिजेंडरी महिलाएं, ऐसी महान विभूतियों के बारे में उस समय जो उनके एरा में वहां पर रही होगी, उनके बारे में लिखा है। गॉट इट स्टूडेंट? मैं भारतीय संदर्भ में बात करते हुए आपको बता रहा हूं। तो लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन लिखा है, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एक सेकंड स्टूडेंट ना, वेट। चलिए, देखिए यहाँ पर इसमें अगला जो फैक्ट है, ड्राइडन रीराइट कैंटरबरी टेल्स इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में अगर किसी ने कैंटरबरी टेल्स को रीराइट करने का काम किया है तो ड्राइडन का नाम है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ही वाज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। देखिए, इनको पहला राष्ट्र कवि कहा जाता है। ही वाज द फर्स्ट नेशनल पोएट, जॉफ्री चौसर वाज द फर्स्ट नेशनल पोएट, पोएट कवि कहा जाता है ना। फिर ड्राइडन ने इनके बारे में क्या है, हियर इज अ गॉड्स प्लेंटी, है ना, अबाउट हिम, हियर इज अ गॉड्स प्लेंटी, यानी भगवान की प्रचुरता है इसमें। एंड अ रफ डायमंड, ठीक है, आप देखिए रफ डायमंड से तुलना कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए डायमंड, एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड वेयर ही शाइन्स। देखिए, ठीक है, मतलब आप सोचिए एक ऐसा सितारा था, एक ऐसा हीरा था, हीरे से तुलना हो रही है जहां चमकता है वो, है ना। तो ये इनका, सॉरी,
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू है, थोड़ा वेट करें। चलिए नेक्स्ट हम देखें, बोकाशियो एक्सरसाइज द डीप इन्फ्लुएंस ऑन चौसर। सबसे ज्यादा चौसर के ऊपर प्रभाव रहा तो वो बोकाशियो का रहा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो बोकाशियो का रहा है। ऑन डिप्लोमेटिक मिशन ही वाज सेंट इटली, इटली में भी उनको भेजा गया था। तो पेट्रार्क और बोकाशियो से मिले वो, है ना, आपको बता दें जब उनको भेजा गया तो पेट्रार्क और बोकाशियो से मिले। ही मेक्स अ क्लियर रेफरेंस टू पेट्रार्क इन हिज क्लर्क टेल। एक क्लर्क की टेल है, कैंटरबरी टेल्स में अलग अलग कहानियां हैं, तो उसमें क्लर्क की टेल में पेट्रार्क का भी जिक्र किया है। अब देखिए यहाँ पर ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। देखिए ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, है ना, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स भी इनको कहा जाता है। एक दूसरा आप देखेंगे, ही इज कॉल्ड द जोफ्री चौसर आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग। मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग, है ना, यानी पोएट्री सॉन्ग का जो ओरिजिन हो रहा है उसका मॉर्निंग स्टार है। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, आगे जो रेनेसा पीरियड आने वाला है उसके मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अर्नोल्ड ने इनके बारे में कहा है, चौसर लेक्स नॉट ओनली द एसेंट, देखिए लेक्स नॉट ओनली द एसेंट ऑफ दाते बट आल्सो द हाई सीरियसनेस, यानी दाते को इन्होंने फॉलो किया है, दाते बोकाशियो। ठीक है, तो अर्नोल्ड ने भी इनकी तारीफ करी है, बहुत सीरियस बात भी ये कहते रहे हैं। ही इज द फर्स्ट वन टू यूज ओटेवा रीमा। देखिए ओटेवा रीमा इन द बुक ऑफ द डचेस, इनके एक बुक का नाम है बुक ऑफ द डचेस। इनके एक बुक का नाम है बुक ऑफ द डचेस। इस बुक ऑफ द डचेस में जो है उन्होंने ओटेवा रिमा इसका यूज किया है। ओटेवा रिमा जो है स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, ओटेवा रिमा एक प्रकार की क्या है, ये 8 सिलेबल लाइन है इन कपलेट राइमिंग। देखिए यहाँ पर 8 सिलेबल, सिलेबल का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबल का मतलब क्या है, जो एक बार में प्रोनाउंस होता है ना, आप उसको अंश कह सकते हैं, शब्दांश कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए, जैसे ये ओनली लिया, मान ले ओन ली, तो ये दो तरीके से उच्चारण हो रहा, ऑन और ली, तो यहाँ पर 2 सिलेबल है। समझ में आ रहा है ये सारनो, देयर आर 2 सिलेबल्स हियर। तो इसी तरीके से 8 सिलेबल लाइन है। और जो कपलेट राइन में, कपलेट राइन का मतलब है 2 लाइनें रहेगी जो अंत में जाके कहीं ना कहीं क्या है, राइम करेगी। समझ में आ रहा है, यानी अंत में आप साउंड मिलेगा, उनमें राइमिंग होगी, है ना, तुकबंदी जिसको हम कहते हैं। तो ओटेवा रिमा इसका यूज किया है जिसमें 8 सिलेबल लाइन होती है। सिलेबल आयबिक पेंटामीटर, इसके ऊपर थोड़ा सा हम बाद में और चर्चा भी करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करें हम अगर, है ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूज्ड द हेरोइक कपलेट इन, देखिए ओटेवा रिमा, है ना, फिर उसके बाद में हेरोइक कपलेट, है ना, हेरोइक कपलेट का इन्होंने यूज किया है इन द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन। ये इनकी बुक का नाम है, लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन। इसमें हेरोइक कपलेट इज 10 सिलेबल लाइन। 8 सिलेबल लाइन क्या है ना, जो पीछे हमने देखा है स्टूडेंट, वो क्या है, वो ओटेवा रिमा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हेरोइक कपलेट का मतलब जो है 10 सिलेबल लाइन, इसको आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। 10 सिलेबल का मतलब है एक 2 सिलेबल एक जोड़ा, तो यहाँ 10 सिलेबल मतलब 5 जोड़े, तो 5 जोड़े को हम बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, पेंटामीटर, है ना। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबल ये हम देखेंगे, सिलेबल एक बार फिर से हम देखें, वुमेन, जैसे यहाँ पर वुमेन, आप देखेंगे यहाँ पर दो सिलेबल है, वु और मेन, यानी 2 तरीके से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो हेरोइक कपलेट इज 10 सिलेबल लाइन राइमिंग इन कपलेट्स, है ना। तो ये आप देखेंगे, ही फर्स्ट यूज्ड राइम रॉयल। स्टूडेंट ये पूछा गया है, पिछली बार एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया है राइम रॉयल को लेकर के, इन ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ट्रायलस हीरो है, क्रेसिडा हीरोइन है, ये इनका वर्क है इसमें। राइम रॉयल की बात करें स्टूडेंट, तो 10 सिलेबल लाइन है, अरेंज्ड इन 7 लाइन स्टेंजा, ए बी और बी सी सी। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो राइम रॉयल, हु ओरिजिनेटेड राइम रॉयल, राइम रॉयल, रॉयल फैमिली को एक तरीके से उनको समर्पित ये कविताएं थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सारे फैक्ट है स्टूडेंट। राइम रॉयल में 10 सिलेबल होते हैं, 7 लाइन में अरेंज होता है ना। फिर द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स की बात करें स्टूडेंट, देखिए
कैंटरबरी टेल्स में कितनी कहानियां हैं, कितने वहां पर कैरेक्टर्स हैं, हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जनरल प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, एक तरीके से कैंटरबरी टेल्स का इंट्रोडक्शन। तो कैंटरबरी टेल्स का जो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट, वो जो है उसमें ही आप सोच सकते हैं 800 या 858 लाइन्स हैं, 858 लाइन्स है स्टूडेंट इन जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। बहुत महत्वपूर्ण है, जनरल प्रोलॉग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें, द जनरल प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकाशियोस डेकामेरन। देखिए स्टूडेंट पूछा जाता है, ये जो जनरल प्रोलॉग है, ये प्लान है स्टूडेंट, ये कैंटरबरी टेल्स में बोकाशियो के डेकामेरन से लिया गया है। हमने कहा है, एज आई टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ जोफ्री चौसर हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोकाशियो एंड पेट्रार्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोकाशियो का डेकामेरन एक वर्क है, वहां से इन्फ्लुएंस है। इन कैंटरबरी टेल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट, इन कैंटरबरी टेल्स जो जो पिलग्रिम्स हैं कुड बी सीन गोइंग टू थॉमस बकेट इन द अप्रैल मंथ। ये देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है। कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी एक स्थान का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, कैंटरबरी इज है ना, इट इज अ नेम ऑफ प्लेस। एंड पिलग्रिम्स मीन्स जो यात्री है, तीर्थ यात्री है, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। एंड दे आर गोइंग टू थॉमस बकेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। महीना कौन सा है? अप्रैल है। और थॉमस बकेट कि वहां पर जो पूजा होती है, आप कहें कि एक संत है, वहां पर उन कैंटरबरी उनके एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है, तो वहां पर ये जा रहे हैं। गॉट इज स्टूडेंट, है ना। तो अब यहाँ पर ही गेव पेन पिक्चर्स ऑफ 21 पिलग्रिम्स इन हिज वर्क, है ना। आगे हम बताएंगे किस तरीके से कितने पिलग्रिम्स उन्होंने सोचे थे और कितने लिख पाए, आखिर कितनी कहानियां लिखना चाहते थे लेकिन कितनी लिख पाए। फिर हम बात करें, ही had Chaucer written in prose, it is possible his Troilus and Cressida and not Richardson Pamela। ठीक है, तो would be celebrated as first English novel। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा हम बात करें, एक सेकंड, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा। और ये अल्बर्ट के बारे में, अल्बर्ट ने इनके बारे में कुछ कहा। द अल्बर्ट ने क्या कहा? द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। तो ये वापस रिपीटेशन है जोफ्री चौसर के बारे में। ड्राइडन ने द फादर ऑफ इंग्लिश, है ना, पोएट्री, आप देख सकते हैं। और फिर चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट लैंग्वेज। अब देखिए बाय लोस ने कहा है यहाँ पर, देखिए चौसर ने क्या है, उनकी जो नेटिव टंग थी उसको जो है इंग्लिश भाषा में उपयोग किया है। चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल बाय जीके चेस्टन, है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं, रिपीटेशन है। हियर इज गॉड्स प्लेंटी बाय ड्राइडन, रिपीटेशन है, ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। चौसर एंड लेंगले डाइड इन द सेम ईयर, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। Chaucer has been criticized for presenting about forts and cultivated classes in neglecting the suffering of the poor। यहाँ पर थोड़ी सी एक बात ये है, जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें उन्होंने ज्यादातर क्या किया है स्टूडेंट, इन कैंटरबरी टेल्स उन्होंने जो है ज्यादातर जो फोर्ट्स हैं और कल्टिवेटेड क्लासेस है, उन्होंने ज्यादातर अपर क्लास के कैरेक्टर्स लिए हैं, है ना, अपर क्लास के कैरेक्टर को उन्होंने प्रस्तुत किया है, रादर देन प्रेजेंटिंग निग्लेक्टिंग और सफरिंग पुअर है, गरीब लोगों को उन्होंने नहीं लिया है। तो इसके लिए उनका क्रिटिसिज्म भी होता है, प्रश्न बन सकता है कि वर्क्स में किसको ज्यादा लिया है। Although in Canterbury Tales 120 stories were planned but only 24 were completed। देखिए स्टूडेंट, आप देखेंगे 120 स्टोरीज वर प्लान्ड। जोफ्री चौसर वांटेड टू राइट 120 स्टोरीज, लेकिन केवल 24 ही लिखी गई। आप सोचेंगे कैसे? तो 30 पिलग्रिम हैं, प्रत्येक जो है यहाँ पर 4 स्टोरी सुनाएगा आते जाते, कितनी 120 हो जाएगी। लॉन्गेस्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल इज नाइट्स टेल। अलग अलग 24 जो टेल्स, उसमें नाइट्स की टेल जो है वो बहुत ज्यादा लंबी है, लॉन्गेस्ट है। द वर्क्स ऑफ हिज लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। फ्रेंच पीरियड थोड़ी सी हम चर्चा कर चुके हैं, इसके डिटेल में आप और चर्चा करेंगे स्टूडेंट। फ्रेंच पीरियड आप देख सकते हैं 1359 से 1372 के बीच में है ये फ्रेंच पीरियड।
ड्यूरिंग दिस टाइम इसमें क्या होता है फ्रेंच, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, लेट मी वंस अगेन रिमाइंड यू, as he was more you can say intellectual, and he was sent to on diplomatic mission also. So he went to क्या बोलते फ्लोरेंस, है ना, फ्रांस आल्सो। तो फ्रांस में रहने के दौरान उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे, फ्रांस के कुछ वर्क्स का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो यहाँ फ्रेंच पीरियड में उन्होंने क्या साहित्यिक उन्नति करी वो देखे हम। So during this period, Chaucer translated the Roman de la Rose. ये देखिए, a French poem written during the 1200s, 1200 सदी के आसपास में रोमन डी ला रोज एक फ्रेंच पोएम लिखी गई थी, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया। He also wrote his Book of the Duchess. ये देखिए, बुक ऑफ द डचेस भी फ्रेंच पीरियड में लिखी गई है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें, द वर्क्स ऑफ हिज लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ये रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, सॉरी, दिस इज यू कैन से थोड़ा सा रिपीटेशन है। ड्यूरिंग दिस टाइम चौसर ट्रांसलेटेड रोम डी ला रोज, ये भी देख लिया हमने। ही आल्सो रॉट, ठीक है, कुछ रिपीटेशन है स्टूडेंट, एंड ठीक है, देन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच मास्टर्स सच एज, यहाँ पर देखिए, इटली में किससे इंप्रेस हुए वो, दांते, बोकाशियो और पेट्रार्क। और फ्रांस में किससे इंप्रेस हुए, यहाँ देखिए, गुलेम डी मॉर्चेंट, जीन डेन म्यून और गुलेम डी लॉरिस, इनसे ज्यादा वो प्रभावित हुए हैं। फिर द रोमाउंट ऑफ द रोज 1360 में लिखा गया वर्क है, ये भी फ्रेंच पीरियड में है। इस बुक में क्या है, ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ फ्रेंच वर्क ली रोमन डी ला रोज, जीन डी म्यून और गुलेम डी लोरिस के द्वारा लिखा गया है। गुलेम डी लोरिस, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। फिर हम आगे बात करें तो स्टोरी बिगिंस विद एन एलिगोरिकल ड्रीम। एलिगोरिकल ड्रीम, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, वो सोते हैं, सपना देखते हैं, इन ड्रीम विजन, है ना, वो ऐसा सोचते हैं और दे स्टार्टेड राइटिंग। क्लियर है, कुछ एक बहुत ही एक थीम, एक कॉन्सेप्ट, एक रहस्य की तरफ ले जाते हैं, कुछ है ना, सीक्रेट की तरफ। तो इसमें नरेटर क्या करता है, रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम द गॉड ऑफ लव, है ना। कौन से वर्क की बात हो रही स्टूडेंट, द रोमाउंट ऑफ द रोज, रोज, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो नरेटर है वो क्या करते हैं, रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम द गॉड ऑफ लव ऑन गेनिंग हिज लेडीज फेवर, ही हर लव बीइंग सिंबलाइज्ड बाय अ रोज, ही इज अनेबल टू गेट इनटू द रोज, है ना। जो गॉड ऑफ लव है उनसे वो लेडीज के फेवर में कुछ नरेटर से मैसेज प्राप्त करता है। यहाँ पर जो हर लव बीइंग सिंबलाइज्ड बाय अ रोज, यानी उनका जो प्रेम है वो रोज के द्वारा सिंबलाइज है। ही इज अनेबल टू गेट टू द रोज, लेकिन वो उसको रोज, है ना, प्राप्त करने में असफल रहता है ना। फिर इनकी जो नेक्स्ट बुक है, द नेक्स्ट बुक रिटन बाय जॉफरी चौसर इज द बुक ऑफ द डचेस, है ना। ये देयर आर, दीज आर द वर्क्स, आई विल नॉट डिस्कस इन डिटेल, वी विल हैव मोर डिटेल कन्वर्सेशन ऑन कैंटरबरी टेल्स। व्हाट इज स्टूडेंट, कैंटरबरी टेल्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एंड वी विल डिस्कस लास्ट 5 से 7 मिनट और है ना, आवर क्लास विल रन for next 5 to 7 minutes. The book of the Duchess की बात करें हम स्टूडेंट्स, it was published in 1369. It was published in 1369. You can, student, I would like to tell you, it is very difficult. It is very difficult to bring all the facts within a limited time. Within 1.5 hour, I am explaining more and more things. ठीक है, आप सोच सकते हैं, you cannot, है ना, इमेजिन, हम कम से कम समय में हम बहुत सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। द बुक ऑफ द डचेस की बात करें तो दिस बुक वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द डचेस, ऑन द डेथ ऑफ द डचेस ब्लांचे। देखिए, हु वाज द वाइफ या डेथ ऑफ द डचेस, ठीक है। तो ये जो ब्लांचे हैं, आपको पता होगा स्टूडेंट, ये वाइफ है जॉन ऑफ ग्वांट की, आपको पता है ये साड़ू भाई हैं और ये पेट्रोन ऑफ चौसर है। तो इनके ऊपर ये द बुक ऑफ द डचेस लिखी है, जॉन ऑफ ग्वांट के रिक्वेस्ट के ऊपर। ये जो वाइफ है उनकी डेथ के ऊपर आप कोई पोएम लिखें। तो शी बिलोंग्स टू लेंकास्टर, है ना, लेंसेस्टर, यहाँ पर लेंसेस्टर से संबंध था उनका, ये ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि whom this poem is dedicated, है ना, किसको डेडिकेटेड है। तो ये जो है डचेस ब्लांचे को। क्लियर। फिर दिस बुक इज एन इलेजी एंड एलिगोरी इन नेचर, इट कंप्राइजेस 1300 लाइन्स, यूलोजी भी कह सकते हैं।
एक एलेजी मीन्स शोक व्यक्त करना, है ना, टू मोर्न, है ना, टू माउन, टू लेमेंट, टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस, सेंटिमेंट्स। इफ somebody has died, we express our sentiments and laments, है ना, हम अपना शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। तो एलिगोरी इन नेचर एक तरीके से फिर गहरा रहस्य एक अनेक, है ना, उसमें ले जाती है। इसमें 1300 लाइन से स्टूडेंट। इन दिस बुक चौसर यूज्ड ऑटेवा रिमा फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, ये देखिए। और ये हम प्रीवियस जो स्लाइड थी वी हैव रिवाइज्ड दिस ओटेवा रिमा, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। द बुक ऑफ द डचेस बिगिंस विद द मैन हु कैन नॉट स्लीप। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है बुक ऑफ द डचेस में? ये कहानी शुरू होती है कि ऐसे व्यक्ति है जो ख्यालों में डूबा रहता है और उसको नींद नहीं आती है। His heavy thoughts, वो विचारों में खोया रहता है, बहुत भारी भरकम विचारों में, है ना, बहुत गंभीर विचारों में। एंड फैंटेसीज आर सो डिस्टर्बिंग दैट ही हैजंट स्लीप फॉर 8 years। एक व्यक्ति जो सोचता रहता है, नींद नहीं आ रही है पिछले 8 सालों से उसको, उसके ऊपर ये कहानी शुरू होती है स्टूडेंट, है ना। ये कविता उसको लेकर के हैं, डेडिकेटेड है ब्लांचे को। He fears he will die of his insomnia, so he asks a servant to bring him a book to read। ये जो मेन है जिसको नींद नहीं आ रही है, 8 साल से नहीं सो रहा है, इसको डर है कहीं उसकी मौत ना हो जाए इससे, नींद नहीं आने की वजह से। तो अपने सर्वेंट से कहता है कि मुझे एक बुक ला कर दीजिए, मैं पढ़ूं, कुछ ना कुछ पढ़ूं, हो सकता है बुक पढ़ते हुए मुझे नींद आ जाए। तो विच ही कॉल्स रोमांस, medieval European genre of literature often about knights and their adventures and romances, ठीक है। फिर he says that it's better to read than to play chess to try to fall asleep। वो कहते हैं जो है ना, ये इसके बारे में है, रोमांस मिडाइवल यूरोपियन जेनर ऑफ लिटरेचर, ये वाली बुक होती है, ठीक है। बहुत डिटेल में आप जा सकते हैं इसमें। और वो कहते हैं कि इट इज बेटर टू रीड देन टू प्ले चेस, मतलब पढ़ना अच्छा है बजाय चेस खेलने के, सोने का प्रयास करने के लिए किताब पढ़ना अच्छा है बजाय चेस खेलने के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सम ऑफ द अदर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, ठीक है, हम यहाँ पर कुछ अदर वर्क्स हम पढ़े यहाँ पर। तो इसमें एक एबीसी है, इट इज रिटन इन 8 लाइन स्टेंजा। फिर अगला वर्क है जॉफ्री चौसर का इस पीरियड का, द कंप्लेंट अनटू पीटी। चौसर है यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अ 7 लाइन स्टेंजा नोन एज राइम रॉयल, है ना, 7 लाइन स्टेंजा राइम रॉयल। बिल्कुल रट लेना, कई बार सिंपल पूछा गया है, वी विल सॉल्व इट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे वहां आपको मिलेगा। फिर इनका एक और है द कंप्लेंट ऑफ मार्स, फिर है क्वीन एनिड, एनिलीदा, है ना, एनिलीदा। तो स्टूडेंट ये जो है पर्टिकुलर वर्क है, ये फ्रेंच पीरियड के हमने पढ़े, गॉट इट, है ना। नाउ नेक्स्ट पीरियड बिलोंग्स टू इटालियन पीरियड, है ना, नेक्स्ट पीरियड बिलोंग्स टू इटालियन पीरियड। हम बात करें इटालियन पीरियड की 1372 से 1885 तक, 1385 तक इटालियन पीरियड। 3 पीरियड है, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, फ्रेंच पीरियड, इटालियन और इंग्लिश। इटालियन पीरियड में अब उन्होंने क्या क्या किया। इन 1372 चौसर वेंट टू इटली, चौसर इटली गए एंड कैम इन पर्सनल कॉन्टेक्ट विद दाते, पेट्रार्क एंड बोकाशियो। 1372 में चौसर इटली जाते हैं, दाते और पेट्रार्क और बोकाशियो से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, क्लियर है। तो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन स्टूडेंट, इनके ऊपर दाते, पेट्रार्क और बोकाशियो का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। आप देख सकते हैं इनके इंपोर्टेंट वर्क्स में ट्रायलस एंड क्राइसिडा, क्राइसिडा बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्लियामेंट ऑफ फोल्स, है ना, पार्लियामेंट ऑफ फोल्स, ठीक है। फिर द हाउस ऑफ फेम और द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, है ना, ये वर्क जो है ये इटालियन पीरियड में लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली बात करें ट्रायलस एंड क्राइसिडा की, तो यहाँ यू कैन सी इट इज अ ट्रेजिक वर्स रोमांस, ट्रेजिक वर्स रोमांस, है ना। ये ट्रायलस हीरो है, क्राइसिडा जो है हीरोइन है, by Geoffrey Chaucer, composed in the 1380s and considered by the some critics to be his finest वर्क, है ना। ये 1880s में 1380s में लिखा गया है और इसको फाइनेस्ट वर्क के रूप में क्रिटिसिज्म भी मिला है। द प्लॉट ऑफ दिस, जो इसका प्लॉट है वो 8213 लाइन की पोयम है, वाज टेकन लार्जली फ्रॉम, है ना, जोवेनी बोकाशियोस, बोकाशियोस सेकंड फाइलोस्ट्रेटो, है ना। ये देखिए बोकाशियो की सेकंड फ्लाइस फाइलोस्ट्रेटो से या फिलोस्ट्रेटो से लिया गया है। रिमेंबर इट, प्रश्न पूछा जा सकता है। ट्राइलोस एंड क्रेसिडा का जो प्लॉट है वो लिया गया है बोकाशियो की बुक फिलोस्ट्रेटा से। इट रिकाउंट्स द लव स्टोरी ऑफ ट्राइलस, ये लव स्टोरी है स्टूडेंट, किसकी किसकी, ट्राइलस की, सन ऑफ द ट्रोजन किंग, है ना,
प्रियम, ट्रोजन किंग प्रियम के सन है ट्राइलस, एंड क्राइसिडा विडोड डॉटर ऑफ द डिजर्टेड प्रिस्ट कैल्चास, है ना, ये विडोड डॉटर है ना, किसकी है ये, प्रिस्ट कैल्चास की। इनके बीच में जो लव स्टोरी है उसको लेकर के ये है, और दोनों के बीच में लेटर का आदान प्रदान होता है ना, और किस तरीके से ये प्रेम आगे बढ़ता है उसके बारे में है। द पोएम मूव्स इन leisurely fashion with introspection and much of what would now be called a psychological insight dominating many sections, ठीक है। एडेड बाय क्रेसिडास अंकल पेंडारस, ये पेंडारस के माध्यम से क्रेसिडास के अंकल हैं, ये क्या है, ये इनका माध्यम बनते हैं, दोनों के बीच में जो लेटर लिखे जाते हैं आदान प्रदान होते हैं, है ना। आप देखेंगे तो ट्रायलस और क्रेसिडा के बीच में तो ये पेंडारस मदद करते हैं। ट्रायलस एंड क्रेसिडा आर यूनाइटेड इन लव अबाउट हाफ वे थ्रू द पोएम, बट देन शी इज सेंट टू जॉइन हर फादर इन द ग्रीक कैंप आउटसाइड ट्रॉय। देखिए हाफ वे तक हम देखते हैं कि दोनों जो है यूनाइटेड हो रहे हैं, लेकिन बाद में जो है बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये पूरा एक तरीके से ट्रेजेडी है, ट्रेजिक है। डिस्पाइट हर प्रॉमिस टू रिटर्न, है ना, वो चले जाती है ट्रॉय में, है ना, यहाँ चले जाती है अपने ज्वाइन हर फादर इन द ग्रीक कैंप आउटसाइड ट्रॉय, ठीक है। क्राइसिडा उनको बीच में छोड़ के अपने फादर के कैंप ट्रॉय में चले जाती है, और जो ट्रायलस है उसको बताए बगैर, आप देखेंगे यहाँ पर डिस्पाइट हर प्रॉमिस टू रिटर्न, है ना, ये प्रॉमिस नहीं है रिटर्न आने का। शी इज लव्ड बाय अ ग्रीक वॉरियर डायमोड्स, है ना, मेट्स एंड कम्स टू लव हिम, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से बेट्रे करती है। ट्रायलस लेफ्ट इन डिस्पेयर इज किल्ड इन द ट्रोजन वार, बाद में जो है इसकी ट्रोजन वार में डेथ भी हो जाती है। दीज इवेंट्स आर interspersed with Bothium discussion of free will and determinism and the direct comments of the narrator, ठीक है। At the end of the poem when Troilus soul rises into the heavens, है ना, देखिए कल्पनाओं में है यहाँ पर, जब ट्रायलस की सोल जो है, आत्मा जो है हेवन में उदय होती है, जागती है। द फोली ऑफ कंप्लीट इमर्सन इन सेक्सुअल लव इज कंट्रास्टेड विद द इटर्नल लव ऑफ गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल लव और इटर्नल लव ऑफ गॉड को व्यक्त किया गया है स्टूडेंट। तो बहुत ही प्यारा ये वर्क है ट्रायलस एंड क्रेसिडा, यू कैन गो थ्रू द वर्क, ठीक है स्टूडेंट। आई होप इन नेक्स्ट क्लास वी विल हैव कन्वर्सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और वी विल बी कंटिन्यू विद 1.5 hour सो दैट वी कैन have conversation of most of the literature student, we have lot of, आप सोच सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर बहुत वास्ट है, लॉट ऑफ सिलेबस इज देयर, है ना। आप देखेंगे सैकड़ों राइटर हैं, उनके सैकड़ों वर्क्स हैं, है ना। तो इनके सारी कहानी को अंदर तक जानना समझना बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द once again please watch recorded class and go through the notes, make your own notes, remember the facts, memorize the facts, ठीक है। तो ठीक है, एंड आई होप यू विल बी नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट जून सेशन है स्टूडेंट, आप एक बहुत उज्जवल भविष्य के साथ में इंग्लिश के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड टुमारो नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो विल बी कंटिन्यू, है ना, एंड आई विल टेल यू द न्यू टाइम, थोड़ा पे अटेंशन, आई विल डिक्लेयर न्यू टाइम 7:30 और 7 o'clock देयर विल बी, है ना। टाइम को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना किस टाइम पे नेक्स्ट क्लास रहेगी, ओके स्टूडेंट। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।